रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 2 की आज हम एक्सरसाइज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नंबर 1, वाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज कंसिडर्ड हैज अ बेस ऑफ मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट। द वर्ड एटम कम फ्रॉम एटोमोस विच मीन अनकट या indivisible are the smallest particle which are impossible to see with naked eyes. It was an old theory that matter is made of very small particles. This idea was first proposed by Greek philosopher Democritus in 400 BC. However, no further work was done until 19th century. It was John Dalton, an English school teacher, who, after a series of experiments, concluded that all matter must be composed of tiny particles which are solid ball and that cannot be further subdivided. He called them atoms. He represented his theory under the title A New System of Chemical Philosophy. The main point of Dalton's atomic theory are as follows. Matter is composed of smallest tiny indivisible particles called atoms. यानी हमारे पास जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल जो पार्टिकल से बने होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Atoms of the same element are identical in size, shape, mass and their properties. यानी सेम जो एलिमेंट होंगे उनका साइज, शेप और मास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एटम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी हमारे पास डिफरेंट होगी। लाइक सोडियम और हाइड्रोजन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से चेंज होगी, लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो आइडेंटिकल होगी, सेम साइज, सेम शेप और मास होगा। एटम कंबाइंड टुगेदर इन स्मॉल होल रेशो नंबर एंड इन द स्मॉलेस्ट रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। यानी आपके पास जो एटम कंबाइन करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, होल नंबर होगी। All chemical reaction are due to combination or separation of atom. हमारे पास केमिकल रिएक्शन एटम की सेपरेशन और कम्बिनेशन की वजह से होती है। नंबर 2, summarize Rutherford atomic model of an atom and explain how he developed this model based on a result of his famous gold foil experiment. ठीक है, हमारे पास जो मॉडल है रदरफोर्ड का वो किस पे बेस है, उसके गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट of particles 20,000 which carries positive charge. In fact, helium nuclei form a radioactive source in polonium metal. He allowed to fall a beam of alpha particle on a thin gold foil और वो हमारे पास उसका जो कितनी थिन थी, वो हमारे पास 0.0004 सेंटीमीटर थिक थी। द गोल्ड फॉयल वाज सराउंडेड बाय फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड। हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन टू डिटेक्ट द पार्टिकल एमिटिंग फ्रॉम द रेडिएशन। ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल थे, पास थ्रू द फॉयल अनडिफेक्टेड और विदाउट changing their path, but a few particles were deflected at different angle. Only few rays were bounced back at their original way. From the deflection of alpha particle bounced back at the same angle. Conclusion क्या थी? Rutherford concluded that there was a positive charge particle present in the center of an atom. So alpha particle near this portion were repelled. Because alpha particles are also positively charged particles and similar charge repel each other. If alpha particles pass very closely to nucleus, they deflect through large angle. Similarly, if they do not pass as close to nucleus, they either deflect through a very small angle or do not get deflected at all. मेन पॉइंट हमारे पास क्या थे? द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस
It contains electron and neutron. Majority of alpha particles passed without changing their path show that most of the space in atom are empty. Electron revolving around the nucleus would require centripetal force. The attractive force of the nucleus on electron provides centripetal force to the electron. The size of the nucleus is so small as compared to the size of an atom. The whole mass of the atom is present in its center called nucleon mass due to the presence of proton and neutron. ये हमारे पास जो एटम का मास होता है इट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस. An atom is neutral has the number of electron is numerically equal to that of proton. हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है बिकॉज हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम. जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो एटम के जो मास और एनर्जी होती है इट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है मास जो हम कैलकुलेट करते हैं वो न्यूट्रॉन उस पर डिपेंड कर न्यूट्रॉन की वजह से होता है वो. Defect in Rutherford atomic model. The major objection raised against his model were the following. Rutherford model is based on the law of motion and gravitational, which are applicable to neutral bodies and not on the charged bodies. According to Maxwell theory, the revolving electron being a charged particle must lose energy continuously and ultimately spiral fall into the nucleus. However, it does not happen. The revolving electron radiates energy continuously and the atomic spectrum should be continuous one, but actually it gives a line spectrum. And it does not provide any explanation about the chemical property of the element. तो ये हमारे पास क्या थे मेन डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. Question number 3. State the postulate which Bohr suggests to overcome the shortcoming of Rutherford atomic model. Neil Bohr atomic theory. To overcome the defect of Rutherford atomic model, Neil Bohr in 1913 presented an atomic theory considering hydrogen atom has a model. This theory is based on the following assumption. The negative charged electron revolve around the positively charged nucleus in certain fixed circular path called shell orbits or energy level. ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उसकी फिक्स एनर्जी यानी फिक्स सर्कुलर पाथ है और उसको आप क्या बोलते हैं शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल. द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. यानी जितनी हमारे पास प्रोपोर्शन है तो जितनी एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी उतना ही वो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा. Further the electron from the nucleus, the higher will be energy and vice versa. Electron does not radiate energy as long as it is present in an orbit. Energy of an orbit is fixed. यानी हमारे पास जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी क्या होती है फिक्स होती है. बट व्हेन इलेक्ट्रॉन absorb or radiate energy whenever it moves from one orbit to another. The change of an electron on going from one orbit to another is given by the relationship. हमारे पास डेल्टा E is equal to E2 minus E1. सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है ये E1 है और हमारे पास H म्यू. तो हमारे पास H भी यानी H हमारे पास क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी हमारे पास वैल्यू क्या है उसकी हमारे पास वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34. इसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है E2 हमारे पास क्या है E1 जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या है लोअर एनर्जी ऑर्बिट है E2 हायर एनर्जी ऑर्बिट और डेल्टा E हमारे पास क्या है द एनर्जी डिफरेंसेस. Electron can reside in an orbit for which its angular momentum is integral
मल्टीपल ऑफ n बाई 2 पाई। तो हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, यानी वो हमारे पास होल नंबर में होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। m हमारे पास कहते हैं मास है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। नंबर 5 जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन दैम। इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिट पे प्रेजेंट होंगे और वो बिटवीन टू ऑर्बिट कभी भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते। नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर न्यूट्रल एटम ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप्स। आइसोटोपिक सिंबल हमें दिए हुए हैं। ज़ीरोन हमारे पास 131 उसका एटॉमिक मास है और उसका एटॉमिक नंबर 54 है। तो एटॉमिक नंबर 54 है, मास हमारे पास 131, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो 54, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 54 और न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a माइनस z। तो a हमारे पास जो मास है वो हमारे पास क्या है, 131 है। हमारे पास जो चार्ज है ये प्रोटॉन है वो 54 है, तो 131 माइनस 54 इज इक्वल टू 77। कोबाल्ट हमारे पास 59 है उसका एटॉमिक मास और उसके जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है। एटॉमिक नंबर के जो हमारे पास कॉलम है वहाँ पे 27, मास 59, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 27 आएंगे, प्रोटॉन भी 27 आएंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने कैसे फाइंड आउट किया है, 59 माइनस 27 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट हमारे पास है 144 उसका एटॉमिक मास है और हमारे पास 60 उसका एटॉमिक नंबर 60, मास 144, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 60 और न्यूट्रॉन हमने 144 माइनस 60 इज इक्वल टू 84। टिन हमारे पास है, तो टिन हमारे पास क्या है 48 और उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 22, एटॉमिक नंबर 22, मास 48, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 22, न्यूट्रॉन हमारे पास 48 माइनस 22 इज इक्वल टू 26। हॉल्फनियम हमारे पास है 178 और हमारे पास उसका मास 178 है, एटॉमिक नंबर 72, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 72 और इस तरह हम लोगों ने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया है। और गोर है हमारे पास 40 और इसके हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 18, तो एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 18 और हमें विद द हेल्प ऑफ नंबर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर हमने न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास है 22। तो ये हमारे पास इस तरह हम लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारे पास कॉलम है इसको हम लोगों ने फिल किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल। Explain the distribution of electron in various energy level and some energy level are first 4 element of the periodic table. Energy level, so these are definite circular part at the definite distance from the nucleus in which the electron move in anti-clockwise direction or any direction. The energy level are also called shell or orbit. The number of electrons in an orbit is constant according to 2n2 formula presented by Bohr, and these orbits are designed as k, lmn, etc. तो शेल हमारे पास क्या है, 1 शेल है यानी इज इक्वल टू k। तो हमें इस फार्मूले यानी 2n2 फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करने हैं। तो शेल 1 है, इट्स मीन हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। यानी अब इसको कैसे करेंगे, हमारे पास जब n इज इक्वल टू 1 होगा, फार्मूला हमारे पास क्या है 2n स्क्वेयर। 2 है, 2 हमारे पास n की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 2 हमारे पास 1 आएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो जो फर्स्ट के शेल है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह आप जब L करेंगे, L इज इक्वल टू हमारे पास N 2 के बराबर है, तो इधर हम N की वाली हमने 2
पुट की है तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, एम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन और एल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो ये हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2n2 फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। Energy level, the region where the possibility of finding electron is maximum is called sub energy level। ये जहाँ पे हमारे पास वो प्लेस या रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो वो हमारे पास क्या होता है, सब एनर्जी लेवल कहलाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग सेम एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल्स। These orbitals cannot accommodate more than 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास जो सब एनर्जी लेवल होते हैं उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। They are 4 type of orbitals, namely has S, P, D and F, which stand for sharp, S for sharp, P for principal, D for diffuse and F for fundamental respectively। These S orbital is spherical, यानी हमारे पास जो S orbital है it is spherical, P orbital is dumbbell, while D orbital is double dumbbell and F are more complex in shape। पार्ट 2 हमारे पास जो एनर्जी लेवल हमारे फर्स्ट जो 4 हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है उसको हमने अरेंज करना है, तो यदि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। तो हमारे पास फर्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है 1, यानी के शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है। ग्रुप 1A है और पीरियड भी वो 1 में आता है। हीलियम, हीलियम में हमारे पास के शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, ग्रुप 8 में आता है और जो पीरियोडिक जो हमारे पास पीरियड है वो 1 है। लिथियम, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, यानी ग्रुप 1 में वो प्रेजेंट है और जो पीरियड है वो क्या है 2 है इसका। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें, यानी एटॉमिक नंबर उसका 4 है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। ग्रुप 2 हमारे पास 2 है और पीरियड भी हमारे पास क्या है 2 है।